प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस सीजन में इस गीतों के द्वारा याद करके उसके नाम को महिमा करेंगे। सुनो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में आया है। बहनों सुनो, क्योंकि मेरा मसीहा दुनिया में आए हैं। आइए हम मिलकर आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। He is the light of the world who stepped down into this world and He gave light to us. And today we have light because of Him. Hallelujah. Open my
me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Razana. Razana, tu सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान. नम्र होकर आया इस संसार को बनाया उसने, प्रेम के कांटे हुआ करे. आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं. यीशु से बतू है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत. मुझको आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं. यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत. मुझको here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Oh my Lord. आए तेरा यीशु मसीह को आराधना करेंगे. अपना मुंह को खोल कर यीशु को धन्यवाद करेंगे. यीशु तेरे आराधना हो. मैं यहाँ हूँ, तेरे आराधना हम करते हैं यीशु. तू सुंदर है, तू अति योग्य है यीशु. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं. यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत. मुझको तेरे आराधना हो यीशु मेरे प्रभु. तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे जैसा कोई नहीं.
यीशुआ तेरे धन्यवाद हो।
जैसा कोई नहीं। ओ मेरे प्रभु तेरे धन्यवाद हो यीशु। तू मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आया यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। May praise and worship and glory be unto you, Jesus. You are the worthy one. We lift you high, O Jesus. We lift you high. We adore you, Jesus. We adore you. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. You are Lord. You are worthy. Jesus is Lord. Jesus is King. Oh, we worship you, Holy God. Thank you. Thank you. हाँ परमेश्वर, हम सच्चाई से पूरे दिल से और आत्मा से आपको ये आराधना को अर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है और जो भी कुछ यहाँ में करने जा रहा है उसी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हम सबको बात करें आज। आप हम सबको फिर से आपका जीवित वचन से बोल और बात करें। हम आपके लिए तैयार है प्रभु जी। हमारा हृदय खोल रखा है, वो हमसे बात करें। धन्यवाद, महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से, आमीन। आज फिर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारा 3 सर्मन्स हो गया है। सो आज आप जैसे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है लव मेड फ्लैश, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट लव। हमने बात किया था होप के बारे में, हमने बात किया था पीस के बारे में, एंड देन वी स्पोक अबाउट जॉय, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट लव ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। फादर, वी थैंक यू। वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्व्स unto you, O God. Lord, we pray that, Lord, you will guide us and you will lead us. Holy Spirit, come and minister to each and every one of us, O God. Lord, it is your love because of which we are not consumed, O God. So Lord, today as we spend time in your presence, as we dig deeper into the kind of love that you have loved with us, oh God, loved us with, I pray, oh God, that Lord, you will open our minds, you will open our eyes, you will open our ears and our heart, oh God, that we will be able to see, we will be able to hear, and we will be able to understand with full understanding, oh God. Father, let your love touch us and transform us inside out, O God. And Lord,
Let your love equip us to do what you want us to do, O God. Let every word be inspired by you and you alone, O God. Father, I surrender myself unto you, God. Lord, I need your grace and I need you, O Lord, to lead. Father, take complete control. I come against every spirit of distraction, of confusion, of lethargy, and I bind it in the name of Jesus. And I pray, Holy Spirit, may you take complete control. In Jesus' name, we ask and pray. Amen. So हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं, The Heart of Christmas. No, this is an Advent series. And Advent जो शब्द है, the word Advent, it means coming. इसका मतलब होता है आना, arrival, right? The one thing good about this Advent is that we are not just celebrating the coming of Jesus as a child, as a baby boy, but it also makes the church, जो कलीसिया के लोग हैं, हमें एक आशा देता है, ये एक उम्मीद देता है of the second coming of our Lord Jesus Christ, right? So this concept of Advent is not just ये जो Advent time है, जो Advent season है, ये सिर्फ Christmas season ही नहीं है. You know, हम लोग सोचते हैं Advent Christmas है, Christmas के आने के पहले हम लोग wait करते हैं of the arrival, right? But this Advent season is more than just Christmas, right? So Advent जो समय है, it is talking about preparing ourselves for the coming. Between the coming which happened 2000 years ago and the coming which will suddenly happen one day. इसके बीच का ये जो समय है, इसको हमें तैयारी के साथ जीना है, राइट? हमें ये तैयारी के साथ जीना है. 2000 साल पहले यीशु मसीह आ गया है. द अराइवल हैज़ हैपेंड, पर एक और एक अराइवल है जो आने वाला है. देयर इज़ वन मोर अराइवल दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एंड वी डोंट नो विच डे. हमें नहीं पता कब होगा वो. सो दैट अराइवल ऑल्सो वी हैव टू एंटिसिपेट. हमें वेट करना है, हमें प्रतीक्षा करना है, हमें रुकना है, ठीक जैसे हम एडवेंट क्रिसमस को मनाते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे कोटेशन देखेंगे बाय डाइट्रिश बॉनहीफर. द एडवेंट सीजन इज मोर देन जस्ट क्रिसमस. द एडवेंट सीजन इज अ सीजन ऑफ वेटिंग, बट आवर होल लाइफ इज एन एडवेंट सीजन. हमारा पूरा जीवन जो है वो एक एडवेंट सीजन है. क्यों? दैट इज अ सीजन ऑफ वेटिंग फॉर द लास्ट एडवेंट, for the time when there will be a new heaven and a new earth. So हमारा जो पूरा जीवन है वो एक एडवेंट सीजन है. For the arrival we are waiting for the coming, right? So when we are waiting, how are we waiting? Do we find that hope? क्या वो आशा के साथ हम वेट कर रहे हैं? Hope of that new heaven and new earth. Hope that one day we will be with him. So when we are waiting, how are we waiting? हम किस तरह से वेट कर रहे हैं? In this waiting, do we find that love? Are there peaceful times? Is the joy of the Lord with us? And do we experience that love? So ये जो waiting है हमारे जीवन में, ये किस तरह का waiting है? जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, there is so much noise. Even now we can hear the noise, right? There is so much noise around us. इतना ज़्यादा chaos, confusion है, इतना ज़्यादा turmoil है, इतना ज़्यादा fear है, इतना ज़्यादा darkness है. Amidst all these things, are we experiencing the joy of the Lord in our lives? Are we experiencing that hope that we get from the Lord? Are we experiencing that peace that comes from him that surpasseth all understanding? And are we experiencing that love that God has showered so lavishly upon us? क्या हम उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं? बट हमारा जो जीवन है, जब हम चारों तरफ देखते हैं, it is not only about the chaos, it is not only about the turmoil, it is not only about the darkness, but there are some good things also happening.
Are we able to find those good things? Are we able to find those places of hope? Are we able to find that place of joy? Are we able to find that place of peacefulness? Are we? क्या हम उन जगहों को ढूंढ पा रहे हैं? Right? Are we finding that peace as well? Because Jesus, love made flesh, is Emmanuel, God with us. यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में होना was to bring God to us and to take us to Him, right? So हमारा वो रिश्ता में हम जुड़ जाते हैं. आज सवेरे जब हम यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता हमारे जीवन में कौन सा टर्मोइल है, कौन सा chaos है, कौन सा confusion है, कितना noise है, क्या है, मुझे नहीं पता. But our prayer should be that, Lord, we want to experience your peace. We want to experience, oh Lord, the hope that I have from you. No matter everything is blurred, no matter it's so hopeless around, but I want to experience, Lord. I want to experience that hope. I want to experience the peace of God that is above everything else, Lord, that only and only comes from you, right? So today, this morning, जब हम आज यहाँ बैठे हैं, let us have that prayer that I want to experience it, Lord. ये सिर्फ एक वैसा ही क्रिसमस ना हो, हर साल एक क्रिसमस होता है जो हमारे जीवन में एक सीरीज होगा चर्च में, एक प्रचार होगा क्रिसमस का और कहानी वहीं खत्म. बट लेट दिस बी मोर देन दैट. लेट अस एक्सपीरियंस व्हाट जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड टू गिव टू अस. ही हैज कम एंड ही हैज गिवन, बट हैव वी एक्सपीरियंस, हैव वी रिसीव्ड? दैट इज द क्वेश्चन. एंड लेट इट नॉट बी जस्ट अनदर क्रिसमस टाइम, बट हर साल हमें और करीब हमारे परमेश्वर के साथ वो रिश्ता में हमें जाना है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इमैनुअल, गॉड विथ अस, राइट? एंड द लव दैट इज सो पावरफुली शोन बिकॉज ऑफ दिस इमैनुअल, गॉड विथ अस. सो हम लोग चलेंगे, हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना. आज का जो हमारा वचन है वो पहला यूहन्ना उसका वचन चैप्टर 4 से है. 1 John chapter 4. और यहाँ पर when we are trying to, let us try to understand the kind of love that God has loved us with, the kind of love that He has showered upon us, and when Christ is the center of everything that we do, when Christ is the center of our entire being, when Christ is the center of everything in our life, then we understand this type of love. ऐसा अनोखा प्रेम हमें तब आजाद करता है. हमारे जब जीवन का केंद्र यीशु मसीह होता है, तब हम इस तरह का प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं, राइट? देयर इज अ सेंस ऑफ होप, देन देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय, एंड देयर इज पीस, दैट दिस वर्ल्ड just can't give us, right? So it's not just about the bad things. That's what I'm saying. It's not just about the chaos, but even the good things that happen to us. Some good thing in our job, some good thing in our family, some good thing in the church, some good thing, somewhere. वो भी तो our dreams, our aspirations, ये सब कुछ का मायने बदल जाता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है. When Christ is the center of our life, everything changes, right? We experience things in a totally different manner. एक अलग ही तरह से हम उसको अनुभव करते हैं. And it is this love of God जो हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं. This love is a totally अलग लेवल का लव है ये. It is not like we say ना, oh I love going to this place, oh I love eating this food, oh I love so and so person, oh I love my family. नहीं, इस तरह का प्रेम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है, इससे भी पार एक प्रेम है, राइट? हम अभी क्रिसमस सीजन को बना रहे हैं, अभी हम लोग कुछ समय पहले वो कॉन्सर्ट था, लव केम डाउन, एंड वी आर लाइक enjoying, we are merry making, we are preparing and everything. But after all this is done, after our house is that beautiful mess, which actually my house is right now, right? So after all these things are done and gone, can we still experience that kind of love which goes beyond this? इससे भी पार जाने वाला क्या हम उस प्रेम को क्या हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, राइट? Such
greater understanding of love we need to reach, right? So 1 John chapter 4, ये अब जहाँ तक कि हमें लगता है ये यूहन्ना ने लिखा, but then again there are जो यूहन्ना है वो सही में this John the apostle or some other John, we still have to think, and scholars बहुत से अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं. So I will just address the person as the writer. 1 John chapter 4 verse जो chapter 4 है या 1 John की जो पत्री है, इसका जो लेखक है, this person had a personal relationship with Jesus. Okay? ये इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अनुभव किया था निजी तौर पे, एक पर्सनल रिलेशनशिप था. एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट द राइटर इज राइटिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. वो बस ऐसे ही नहीं लिख दे रहा है, बट ही हैज एक्सपीरियंस्ड, वो एक्सपीरियंस कर चुका है और इसीलिए वो लिख रहा है. नाउ ये जो एक्सपीरियंस है हमारे जीवन में, ये बहुत मायने रखता है. हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, व्हेन वी आर वॉचिंग अ मैच, राइट, हम लोग जब वॉच कर रहे हैं मैच को, हम लोग बोलते हैं अरे छोड़ दिया, अरे ऐसा मारना था, ऐसा करना था, वैसा करना था. इट इज़ वन थिंग टू सिट इन द पवेलियन और टू सिट इन योर ड्राइंग रूम एंड वॉच टेलीविजन में वो मैच एंड टू कमेंट, राइट, एंड इट इज़ टोटली अनदर थिंग टू प्ले, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड एक्सपीरियंस. सो द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट, उसको एक्चुअली पता है कि क्या हो रहा है. बट द वन हु इज जस्ट सिटिंग एट द पवेलियन और अपने सोफा में और मैच देख रहा है ना, वो बस कुछ एक्सटेंट तक कमेंट कर सकता है, बता सकता है, बट एक्सपीरियंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम लोग अभी छुट्टियों में आई थिंक पूजा वेकेशंस था एंड कजन्स आए थे जेडी के, एंड वी थॉट कहीं तो जाते हैं. एंड देन हम लोग बोले कहीं सम एडवेंचर वी वांट टू डू, एंड एक दिन वी वेंट टू डू गो कार्टिंग. ओके, हम लोग गो कार्टिंग करने गए, ऑन द वे टू शिलोंग रास्ते में है, एंड खड़े होकर देखने में उनको कैसा है एंड ऑल अच्छा लग रहा था. टिल आई एक्चुअली वेंट एंड आई माई सेल्फ डिड गो कार्टिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेन एक्सपीरियंस. आई डोंट वॉन्ट टू स्टैंड देयर से, ओ मैंने देखा वहाँ गो कार्टिंग हो रहा था, बट आई वॉन्टेड टू से मैंने गो कार्टिंग किया. एंड आई वॉन्टेड टू सी कि ये कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये अलग अनोखा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसके पहले तक मैंने कभी नहीं किया है. मैंने देखा है वो रैली रेसेस होता है, वो सब देखा है, बट वो कैसा होता है वो ड्राइवर के लिए, वो अनुभव किया. सो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पर ये जो लेखक है, ही इज टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. उसका जो यहाँ पे जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज़ को, उस चीज़ को बयान करना मुश्किल होता है. हम थोड़ा बहुत तो बयान कर पाएंगे, बट उसको हम पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट. इट इज़ द सेम थिंग विद गॉड्स लव. अनटिल एंड अनलेस हम परमेश्वर के उस प्रेम को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस हम वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं आएंगे, we will never be able to put to words how and what God's love is. हम कभी नहीं बयान कर पाएंगे. हम कोशिश करते रह जाएंगे, बट कभी भी वो कन्विक्शन के साथ कि दूसरा व्यक्ति को छू जाए, हम कभी नहीं उस प्रेम का परिभाषा दे पाएंगे. हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, हमें ही उस प्रेम को बयान करना इतना मुश्किल होता है. It's so difficult, no? Because God's love is so vast, so big. Words छोटा पड़ जाएगा to experience that love, to talk about that love. Words भी limited पड़ जाएंगे. So people who have not experienced that love think how difficult it is for them to be able to talk about that love. कैसे बात करेंगे तब उस प्रेम के बारे में? So to talk about this love, to be able to give this love, we need to experience that love. So we are talking about experiential love, right? To be able to say that God has loved me. God has loved me. The kind of love that God has loved me is that He sent एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को दे दिया मेरे लिए, कि वो मेरे लिए मर जाए. So that Son of God, He dies for me.
You know, how to put it in words if I have not experienced that in my life? मैं कैसे वो बयान करूं, मैं कैसे समझाऊं अगर मैंने उसको खुद अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है. So if when we have experienced it, then we can tell it to others, then we can explain that to others. So 1 John, हम लोग पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे, हम लोग बस देखेंगे वर्सेस 7 to 12, और इसके द्वारा हम लोग थोड़े गहराई में जाने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर प्रेम के बारे में हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर का क्या उम्मीद है हमसे इस प्रेम के बारे में. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. Amen. The first point here that I want to get our attention to know God is to know love. वापस हम उस बाइबल वर्स में जाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है that everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. So if we know God, then we know love, right? अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम प्रेम को जानते हैं. It's as simple. बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपली वो स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ पे वचन का कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप प्रेम को जानते हैं. सो यहाँ पे जब वो कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप प्रेम को जानते हैं, सो इट इज़ नॉट जस्ट लव, दैट सिंपल लव, दैट ह्यूमन इंटरैक्शन. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इंटरैक्शन ओवर हियर, बट यहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल लव. What you have experienced, that love he is talking about. So when you know God, when you know the kind of love that God has loved you with, then you will be able to love. Then you love. So वो experience जब हम करते हैं परमेश्वर का प्रेम, तब हम प्रेम कर सकते हैं. No, we should love one another based on the experience that we have. हमें क्या experience मिला है परमेश्वर से, किस तरह का प्रेम को हमने परमेश्वर से अनुभव किया है, वैसा प्रेम हमें लोगों से करना है. राइट? सो वी आर नॉट कमांडेड टू लव वन अनदर सो दैट वी विल अर्न और बिकम वर्दी ऑफ गॉड्स लव. परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हम प्रेम नहीं कर रहे हैं. हम इसलिए नहीं करें कि अरे परमेश्वर का प्रेम तब हम कमा लेंगे या हम पा लेंगे या हम इस लायक बन जाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे. बट वी हैव बीन कमांडेड टू लव बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट लव. It is not to experience love of God, but because we have experienced God's love, so we are called to love. Because we are loved by God. Okay? And हम देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा एक कोट है. Love is the summation. सब कुछ का, जोड़, सब कुछ को जोड़ ले, total, that summation. Love is the summation. It is the multiplication of Jesus' righteousness in our life. जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जब यीशु मसीह इमैनुअल गॉड विद अस हमारे जीवन में हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु बन जाता है, तो उसका धार्मिकता जो हमारे जीवन में आता है, it is the multiplication of Jesus' righteousness in our life. It is how much righteous that Jesus has given us, displaying his love. It's a test of us being born of God. अगर हम कहते हैं कि हाँ, we are born of God, हम मसीही हैं, then that is the test. That is the test. It is a test of whether or not we are Christians, right? So, how much and how we love people
इज द टेस्ट। हम किस तरह का प्रेम लोगों से करते हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ लव आर वी शोइंग टू द पीपल? ओके, द काइंड ऑफ लव दैट वी आर कॉल्ड टू शो इज द काइंड ऑफ लव दैट वी हैव रिसीव्ड, दैट इज अ डिवाइन लव। वो एक सुपरनैचुरल लव है ना, वो एक आत्मिक तरह का प्रेम है वो, राइट? एंड दिस इज लविंग पीपल एट अ लेवल दैट इज बियॉन्ड जस्ट ह्यूमन इंटरैक्शन। इट इज बेस्ड, ओके, या क्या चीज के ऊपर ये बेस्ड है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं? क्या इसके ऊपर बेस्ड है? नो, इट इज बेस्ड ऑन गॉड लविंग अस। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस बात पे बेस्ड है। ये अगापे प्रेम है, ये अगापे प्रेम है। इसका कोई कंडीशन नहीं है। देयर इज नो कंडीशन। इट इज नॉट दैट इफ व्हेन वी विल लव गॉड देन गॉड लव्ड अस। वचन में हमने साफ देखा, हम पाप में ही थे, हम जानते नहीं थे, परमेश्वर से अनजान थे हम, लेकिन तब ही में उसी वैसे हालातों में भी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमसे प्रेम करे। सो वी आर कॉल्ड टू लव इन अनदर, टोटली अनदर लेवल, एक नेक्स्ट लेवल का प्रेम। ये मनुष्य का प्रेम से नहीं, ऐसा तो दुनिया में भी लोग करते हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ अच्छे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा। तुम अगर बहुत अच्छे हो, सोसाइटी में तुम्हारा बहुत अच्छा नाम है, यू आर रियली वेल टू डू, यू आर अ वेरी righteous person, then only I will love you. It's very sad that हम कलीसिया के लोग भी ऐसे ही हैं। Very sad. हम लोगों को देखकर प्रेम करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन होता है वो, we are qualifying them to love them. But Jesus was known as the lover of the sinners, friend of sinners. But it is so difficult for us to go and to love the sinners. I'm not saying love their sin. No. Just because हम जाके किसी पापी से प्रेम करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पाप से भी प्रेम कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं जो सही है। No. But हमें बुलाया गया है, we have been called to show, display the love of God. हमें वो प्रेम परमेश्वर का दर्शाना है। But we are very pick and choose. हम पिक एंड चूज करते हैं, जो हमारे जैसे हैं हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लव सच पीपल, बट गॉड इज कॉलिंग अस टू लव इन अ डिफरेंट, अ नेक्स्ट लेवल ऑफ लव। ओके, अ नेक्स्ट लेवल ऑफ लव। एंड ऐसा प्रेम जो हमने खुद अनुभव किया है, ऐसा दैट काइंड ऑफ लव, टू लव बाय एक्सपीरियंस, एंड इट इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। हम, मुझे लगता है हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई भी नहीं बोलेगा आई डिजर्व्ड इट। कोई नहीं बोल सकेगा। हमें पता है हम कौन हैं, वी नो। ठीक है, हम मानना नहीं चाहते वो अलग बात है, बट वी नो हु वी आर। और ऐसे में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए। बट वी हैव अ प्राइस, नो हमारे, लेकिन हमारे पास एक प्राइस है। हम नीचे क्यों जाए, हम क्यों जाके प्रेम करें किसी से? पर परमेश्वर ने तो अपना बेटा दे दिया। हमारे लिए अपना ईगो, अपना अहम को छोड़ना मुश्किल है। वी डोंट वांट टू गो डाउन, बट ही केम ऑल द वे फ्रॉम हेवन टू अस, राइट? सो लव बाय व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट लव, वी आर कॉल्ड टू लव। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर अस, देयर इज नो एक्सक्यूज, राइट? If you know God and you have experienced that kind of love, then we know the core of who God is. परमेश्वर कौन है? We know the core of who God is. हम, परमेश्वर प्रेम करता नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। God does not love, but God is love. आप समझ रहे? परमेश्वर, His very nature is love. God is love. So परमेश्वर का वो स्वभाव है, उसका वो गुण, उसका वो नेचर, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? गॉड इज नॉट गॉड ऑफ रॉथ, गॉड इज नॉट अ डिस्टेंट गॉड, बट व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आर वी गिविंग टू द वर्ल्ड अबाउट दिस गॉड ऑफ लव? वी हु आर लव्ड बाय गॉड, वी हु हैव रिसीव्ड दिस लव फ्रॉम गॉड, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
प्रेम का आइए हम परिभाषा बदल दें आज. Let us change the definition of what love is. Right? हम verse 8 में जाएंगे. Whoever does not love does not know God, because God is love. So अगर हम में से हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, you know, it's a very strong language actually. ये बहुत ही strong language में लिखा हुआ है that whoever does not love does not know God. Right? यहाँ पे know God का मतलब नहीं है just knowing God or not knowing God. यहाँ पे एक relationship के बारे में बता रहा है कि अगर हम बोलते हैं कि हम लोगों से प्रेम नहीं करते, तो ये सच है कि तब हमने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया है, हमने परमेश्वर को नहीं चखा है. We have not tasted and seen who God is, right? We don't even know, right, about God and how strong, how powerful God's love is. Okay? हम जो बोलते हैं कि we can't love our neighbor, we don't know then who God is. And when I say we don't know who God, again, it's not just the superficial level of we don't know, it's the depth. दूर दूर तक हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है. We don't have any relationship. हो सकता है हम संडे आफ्टर संडे, बहुत सालों तक अपने जीवन में हम कलीसिया आ रहे हैं. हो सकता है बहुत सालों से हम कलीसिया आ रहे हैं, हम सबसे ऊंचा हाथ उठा के गा रहे हैं, राइट? हम बाइबल वर्सेस को मेमोरी से कोट कर रहे हैं. हो सकता है हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पर तभी भी हो सकता है हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते. ना अगेन, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी सिर्फ वो लोग नहीं है जो मेरे बगल में आज बैठा है चर्च में. समवन whom आई एम कंफर्टेबल टू बी अराउंड, समवन जिसके साथ मुझे who are like me in thought process, जो मेरे जैसा है या मेरे जाति के हैं, या who have the same mindset like me, who look like me. My friends, no, neighbors are not just limited to them. Neighbor is also those unlovely people. Those unlovely people in our lives, they are also our neighbor. चाहे आप उसको नेबर में फ्रेंड के जैसे ले या एनिमी के जैसे ले, पर है तो वो आपका नेबर, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला लव योर एनिमीज ऑल्सो. सो चाहे वो एनिमी हो चाहे वो फ्रेंड हो, वो आपका नेबर है, आपका नेबर है. When I went to Bible college, ये हमेशा बताते हैं हम, I didn't realize I prayed a very dangerous prayer. I didn't realize this. जब अपना डिवोशन कर रहे थे तो प्रेरितों के काम जब पढ़ रहे थे हम, वहाँ पे एक पोर्शन में आया कि दाऊद के बारे में, that परमेश्वर ने कहा he is a man after my own heart. He is a man after my own heart. No, he has a heart like God. और जब मैंने वो पढ़ा, मेरे अंदर एक इच्छा आया कि अगर दाऊद के लिए परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, a man after my own heart, परमेश्वर मुझे भी ऐसा हृदय दो, that you can say that a woman after my own heart. And I had this desire, a burning desire inside me. I didn't know what I was putting myself into. And I started praying this prayer. Every day I was praying, God give me a heart like you. परमेश्वर मुझे आपके जैसा हृदय दे. Lord, I want to love like you. And I'm telling you, शुरू हुआ वहाँ से मेरा टेस्ट. इससे पहले आज तक कभी मेरे को इतना प्रॉब्लम लोगों के साथ एडजस्ट करने में नहीं होता है. आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बट दैट वाज द टाइम आई रियली स्ट्रगल्ड. इन द बाइबल कॉलेज आई हैड सम फ्रेंड्स, आई एम सेइंग फ्रेंड्स, जो रूमर्स फैलाते थे, एंड दे स्प्रेड रूमर्स अबाउट मी. मेरे बारे में गलत पिक्चर मेरे फ्रेंड को देख करके हमारा जो बहुत अच्छा दोस्ती था उसको बीच में आग लगा के तोड़ दिया. And I was thinking क्या हो रहा है, and I had little bitterness, I had little things in my heart, and then I said ये क्या हो रहा है, like suddenly ये क्या हो गया, why it is so difficult for me to forgive people, why it is so difficult for me to love people. And then God spoke to me, you only ask, no, give me a heart like you. Now I am giving you people, love them like me. You love those people like me, then only you will have a heart like me. And then I realized what I asked in prayer. So if we want to have a heart like God,
We have to learn to love like God. And I'm telling you, अगर आप में से किसी का यहाँ प्रार्थना आज तक ये रहा है या होने वाला है सुन करके, I'm telling you, परमेश्वर हमें कैसा बनाएगा अपने जैसा? Not by bringing lovely people into our lives, by bringing unlovely people into our lives who are not like us, troublesome people, मुश्किल लोग, और उनको बोलेगा प्रेम करो तुम इनको, क्योंकि जब हम इनको प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर का प्रेम को सीखेंगे और हम परमेश्वर का प्रेम को दर्शाएंगे. एंड इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नो, व्हेन वी वर इन दैट पुराना वाला VFC में, एक बार आंटी दिलानी को मैंने बोला किसी व्यक्ति के बारे में, आंटी आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ दिस पर्सन. मुझे डर लगता है कि मैं कहीं कुछ बोल दूँ और वो मेरा बात कुछ और बन जाए और फिर वो फैल जाए. यू नो, आई वॉज वेरी स्कैर्ड. एंड आंटी, दैट्स व्हाई आई मेंटेन माई डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन. ऐसे करके मैंने आंटी को बोला. एंड देन आंटी टोल्ड मी, रेचल, द चैलेंज इज देयर. पीपल whom वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है. एंड गॉड नोज दैट वी विल बी एबल टू लव देम. बट गॉड इज नॉट कॉलिंग अस टू लव सच पीपल. गॉड इज कॉलिंग अस टू लव सच डिफिकल्ट पीपल. जो हमें मालूम है अलग है, हमें मालूम है ये गलती करेंगे. क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम पाप करेगा? क्या परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मालूम था पतरस डिनाई करेगा या यहूदा इस्करियोती उसको धोखा देगा? बट स्टिल गॉड चोज टू लव. यीशु मसीह ने फिर भी उसको अपना चेला करके बुलाया. सो द चैलेंज हियर फॉर अस टुडे इज टू शो दैट, डिस्प्ले दैट काइंड ऑफ लव. And auntie told me, Rachel, the challenge is in loving such people, in getting close to such people. And I said, auntie, it's very difficult. बहुत मुश्किल है ऐसा. But we are called for that. हम देखेंगे लूका के पुस्तक में 6 अध्याय 32 से 36. And this is मेरे लिए को बहुत पसंद है ये बाइबल वर्स. मुझे बहुत पसंद है ये. यहाँ लिखा है, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. So when we are going to love the unlovely, when we are going to love the difficult, when they will see that love, they will know about our Father. वो हमारे पिता के प्रेम को जानेंगे. They will know about our Father. हम देखेंगे वर्स 9. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. ये प्रेम वो लोग कैसे देखेंगे? जब हम उनको दर्शाएंगे. राइट? यीशु मसीह इस दुनिया में आया. परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे दिखाया? He loved us and He sent His Son to be the propitiation for our sins. और अगर दूसरे शब्द में बोले तो what he's saying is, we only know this kind of love because God takes His one and only Son, Emmanuel, God with us, and He gives, उसने अपना एक बेटा को लिया and He gives Him to humanity. Okay, वो इन मनुष्य के लिए दे दिया ताकि परमेश्वर का जो नाराजगी है, the wrath of God to be poured out upon Him. और यहाँ पे ये जो लेखक है पहला यूहन्ना का, वो हमें याद दिला रहा है that Jesus came because the wrath of God has to be poured on somebody. किसी के ऊपर तो वो गुस्सा, वो नाराजगी निकलना है. Thank God it is not I. Thank God it is not you. And Jesus came to take that wrath of God upon Himself. No, यहाँ पर परमेश्वर, no, it's like saying कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, oh I don't just feel bad for humanity. परमेश्वर सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए बुरा महसूस नहीं कर रहा है. Okay, no, it's God saying I don't just feel bad for the lost.
It's like God saying that I don't just have sympathy or empathy, or I'm not just compassionate. He looks at us, He looks at me, He looks at you, and then He takes His one and only Son and He tells to His Son, listen son, you have to go and you have to take that place so that the wrath of God is poured out. You have to bear that punishment upon yourself. So you go so that this son and this daughter of mine can come into this relationship with me, so that I can have that relationship back with these children, my children. ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, राइट? एंड दैट इज द लव ऑन डिस्प्ले. ऐसा प्रेम हम देखते हैं और इसका क्रूस एक बहुत अच्छा सिंबल है. यू नो, दैट्स हाउ गॉड हैज लव. एंड हम में से कोई ऐसा प्रेम नहीं कर पाएगा. वी कैन नॉट लव लाइक दिस काइंड ऑफ लव. हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा एक दूसरे के लिए. चाहे हम किससे कितना ही प्रेम क्यों ना कर ले, ऐसा प्रेम हम उस व्यक्ति के लिए भी हम नहीं कर पाएंगे. यू नो, लव इज एट द कोर एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट वी कैन डू फॉर वन अनदर. परमेश्वर का वो प्रेम को दर्शाना, नॉट द ह्यूमन लव बट दैट काइंड ऑफ लव, ताकि वो प्रेम को देख करके लोग परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर ने इस दुनिया से, लोगों से, मनुष्यों से किस तरह का प्रेम किया है. हम देखेंगे स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन ने ये कहा है, नेवर लेट इट बी थॉट दैट एनी सिनर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ डिवाइन मर्सी सो लॉन्ग एज ही इज इन द लैंड ऑफ द लिविंग. जब तक कोई भी व्यक्ति हो, आपका पड़ोसी कैसा भी क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, जब तक यू आर इन द लैंड ऑफ लिविंग, कभी भी ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए कि हमें ऐसा लगे, हमें या उन्हें ऐसा लगे दैट दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ डिवाइन मर्सी. सो वी द चर्च, वी आर कॉल्ड to show it to them that there is hope for you brother, there is hope for you sister. The hand of God is not too short. No matter आपका पाप कितना ही घिनौना क्यों ना हो, कितना ही गंदा क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम में इतना सामर्थ है कि उसको वो हिम के जैसे साफ कर दे. क्या हम इस तरह से वो खोए हुए को ले सकते हैं और परमेश्वर का प्रेम को दर्शा सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में ये कर सकते हैं? यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव. देयर इज वन मोर राइटर हियर, बॉयस. He says, if God had merely sent Jesus to teach us about himself, that would have been wonderful enough. अगर यीशु मसीह सिर्फ सिखाने के लिए एक टीचर बन के आता, वो बहुत अच्छा था, right? It would have been far more than we would have deserved. And if God has sent Jesus simply to be our example, सिर्फ हमारे लिए एक उदाहरण बनने के लिए परमेश्वर ने अगर यीशु मसीह को भेजा, that would have been good too, right? And we would have had some value. But the wonderful thing is that God did not stop with these, but rather sent His Son, not merely to teach or be an example, but to die the death of a felon. Felon is a criminal, right? That He might save us from our sin. So if God have loved us thus, then we also ought to love one another. Okay? That is the love. That is the love. कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने बयान कर दिया यीशु मसीह इस दुनिया में आने का. नो, बहुत से लोग यीशु मसीह को का जो कार्य है उसको छोटा कर देते हैं. उनके लिए कैजुअल है, हाँ यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, बस. नो, ये वहीं ख़त्म नहीं है, पर वो आज तक चला आ रहा है. We are living it every day. We are living it every day, right? That is the kind of example He has set for us. And we have to love, right? We have to love. और हम आगे यहाँ पे हम एक बात जो है verse 12 में, क्या हम वापस जा सकते हैं? Verse 12, no one has ever seen God, but if we, now ये पूरा जो हम देख रहे हैं, it is all about love. ये पूरा प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में है. यू लव वन अनदर, गॉड हैज़ लव्ड यू, एक्सपीरियंशियल लव, सैक्रिफिशियल लव के बारे में है. बट यहाँ वर्स 12 का स्टार्टिंग का पार्ट देखिए, नो वन हैज़ एवर सीन गॉड.
ये रैंडमली द राइटर हैज जस्ट पुट इट देयर। इसके बाद भी देखिए प्रेम के बारे में है, बट इफ वी लव वन अनदर गॉड लिव्स इन अस एंड हिज लव इज मेड कंप्लीट इन अस, राइट। ऊपर भी देखिए पूरा लव के बारे में है, नीचे भी पूरा लव के बारे में है, लेकिन वो एक छोटा सा वहां पे जो वचन है दैट नो वन हैज एवर सीन गॉड, ये यहाँ पे क्यों डाला हुआ है? यू नो व्हाई ही हैज पुट इट हियर, यू नो ये जो छोटा सा वचन है, क्योंकि ये पूरा जो है John chapter 1, John chapter 4, it's all about love. It's all about love. That God, the love, the kind of love that God has loved. He's not just saying that I like you, but he says he really loves us. He loves us. It's not just emotional, but it is sacrificial kind of love, right? And God's love towards us, it is the ultimate love. लेकिन ये जब प्रेम के बारे में बात कर रहा है, you know, and this love again is not defined by how much we love God, but it is unconditional because he has loved us first. ये सब प्रेम के बीच में no one has ever seen God. Why he is talking? या ऐसे यहाँ पे क्यों कर रहा है? Why is he saying? Because nobody has ever seen God, मतलब nobody has ever experienced that power of God's love. यहाँ पे वो वही मतलब होगा, right? Nobody has ever seen God. क्यों ऐसे अचानक से बीच में बोल रहा है? People have not seen God. People have not experienced that power, God's glory or his deity, right? So if अगर हम याद करें पुराने नियम में मूसा के समय में, परमेश्वर जब वहाँ से गुजरता था तो मूसा के आंखों में भी वो हाथ डाल देता था ताकि वो ना देख सके, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, अति पवित्र, इतना महान परमेश्वर है, राइट? उसका ग्लोरी, उसका महिमामय है वो ना. So nobody has ever seen God, right? And nobody can actually see God and live. no, पुराने नियम में इसी तरह से था, right? And यहाँ पे राइटर जो कह रहा है that none of us, you know, हम में से किसी ने भी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, right? बट लोगों ने किसको देखा है? हमें देखा है. जो लोग हमारे पड़ोसी है वो हम लोग को देख रहे हैं ना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, अभी भी परमेश्वर से अनजान है वो, बट दे आर सीइंग अस, दे आर सीइंग अस, एंड हम में वो परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं. एंड जब परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तो परमेश्वर को भी देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को अनुभव करेंगे. दे विल एक्सपीरियंस गॉड, they will experience God. And if we love one another, देखा, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. परमेश्वर का प्रेम हम में है. No, God's love abide in us as we abide in God, and His love is made complete in us. ये जो complete है, that His love is made matured in us. जब हम वो प्रेम को दर्शाते हैं तो वो प्रेम पूरा तरीके से होलनेस के साथ वो लोगों को नज़र आता है. यू नो, एक लाइन है दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज एडवांस थ्रू लव. परमेश्वर का जो राज्य है ये प्रचार और बाकी सब चीज़ों से उतना नहीं फैलता जितना कि प्रेम से ये फैलता है. यू नो, इसीलिए कुरिन्थियों में हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव, लव इज़ पेशेंट, लव इज़ काइंड एंड ऑल दीज थिंग्स ना. और वहाँ पे एक वचन है ना जहाँ पे लिखा है faith, hope and love, and in some way the strongest of all these is love. And Jesus also in his own word he said love God and love your neighbor. Okay, ये वैसा प्रेम नहीं है love your neighbor that feel good love, या ऐसा प्रेम नहीं जिससे अरे मेरे को तो गूज़बम्स आ गया. Not that kind of love. Okay, it's not that kind of love. This is powerful love. This love that goes way beyond what you and I can imagine, right? और इसको हम परमेश्वर से बाहर नहीं पा सकते, इसको हम परमेश्वर से बाहर नहीं पा सकते. So to know God is to know love, and God's love was displayed this way by His love for us doesn't even come. हम जब सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में, वो इस तरह से परमेश्वर ने दर्शाया है. हम you know लिमिटेड वर्ड्स में तो उसको बयान कर देंगे, बट वी विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द फुलेस्ट. वी हैव टू एक्सपीरियंस इट, एंड बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट वी नीड टू मेक श्योर दैट अदर्स एक्सपीरियंस इट, राइट? हम लोग जब कोई रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं, जाके बताते नहीं यार बोला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, यू गो एंड ट्राई, वहाँ का वो डिश भी बहुत अच्छा था.
हम लोग का कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा होता है तो वी टेल ना, वहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अच्छा कपड़े मिल रहे हैं, या कोई नया कुछ खुल जाता है तो वी टेल ईच अदर, यू नो, वी टेल ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को। देन हम इस प्रेम को जब हमने अनुभव किया है, हाउ मच वी नीड फॉर अदर्स ऑल्सो टू एक्सपीरियंस इट। कितना ज़रूरी है कि दूसरे भी इस प्रेम को अनुभव करें, इस प्रेम को अनुभव करें। यू नो, व्हेन आई स्टैंड हियर एंड आई टॉक अबाउट गॉड्स लव, आपको याद होगा मैंने पहले भी परमेश्वर पिता के बारे में आपसे बांटा था। कल आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली बिकॉज ऑफ स्कूल में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिया गया है, एंड कल अचानक से मैसेज आया दैट ऑल द TGT and PGT teachers have to be in school, and I spoke to the vice principal and मैंने बोला कि नहीं, मेरे को चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, I have to go, and she said मुश्किल है, और उन्होंने मुझे कहा 1 महीना पहले बताया गया था। अब मुझे पता नहीं, मुझे क्यों नहीं पता, हो सकता है मैं नहीं थी उस समय या जो भी रीज़न रहा होगा, and I didn't say anything, I said okay, and I came back home, and मैंने एक बहुत अच्छा खासा लंबा मैंने एक नोट, एक मैसेज लिखा, and I thought I will send it to the principal, and in that मैंने बाद में रियलाइज़ किया नहीं, ये बहुत रूड हो जा रहा है, बहुत सख्त हो जा रहा है, because I wrote that I can't give priority to anything else above my service to God. Yes, school is important and I am no doubt committed to it, but परमेश्वर से ज़्यादा बढ़ करके, परमेश्वर का सेवकाई से ज़्यादा बढ़ करके ये मेरे लिए नहीं है, राइट। एंड मैंने ऐसा शब्दों को लिखा, फिर मुझे लगा नहीं, ये सही नहीं होगा, एंड देन आई थोड़ा बहुत डिलीट करके उसको थोड़ा बेटर करके आई सेंट इट टू हिम, एंड आई गॉट अ रिप्लाई विच वॉज नॉट वेरी गुड वन, एंड ही सेड इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया था, नाउ आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स टू लेट, सो आई एम इन अ मीटिंग, बोल करके ख़त्म द रिप्लाई दैट आई गॉट। बट आई just cried out to God and I prayed. I said, God, you know, I don't want to just go to church for an attendance. You know, and if you want me to come to church, then you will have to make a way. And I said, and you know you are my father and I am your daughter. You know that and you will make a way for me. बस अब और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। And I came out of that room and I went to the other room, वहाँ पे pastor and they were there, and I said, I'm thinking to give my resignation. I just came and I told that I'm thinking of giving my resignation, so much so that मैंने यहाँ तक कि Google में खोजा कहीं और कुछ वैकेंसी है क्या, because I was so upset कि why these people are making me compromise with my faith. If my faith doesn't permit me to do a work and I want to be in church. That is the example I want to set for my children. ठीक है, this is very, ये चीज़ मेरे लिए बहुत क्लियर है। Sabbath is for the Lord, for me, and I want to give my time to Him. And it's not just because I am into ministry. And I really prayed and I said, I am your daughter. Now you know my desire, and if you have to make a way for me. And उसके बाद I went and मैंने थोड़ा इनसे बात किया, and मैंने बोला I think छोड़ देंगे जॉब, नहीं करेंगे, and देखा जाएगा, you know, and then JD is telling me अलग अलग schools का नाम बता रहा है ना, and you know we are just discussing, and तब वापस आए, and then suddenly I get a call from the vice principal, and that hopeless, I was very hopeless कि नहीं होगा, principal ने message कर दिया, and I got a call from her and she's saying, okay ma'am, you do one thing, you exchange with another teacher, but your work is still there. So I said, I assure you that I will complete the work and then only I'll go home. But itna se itna time I have to go to church. She said, okay. And that's why I am here today. Because of the love of God. Because He doesn't want to see His children away from Him. परमेश्वर का भी इच्छा है ना कि उनके बच्चे उसके पास आए। परमेश्वर का इच्छा है ये। This is what God wants for each and every one of us. So अगर हम जो उसके बच्चे हैं, अगर परमेश्वर हमारे लिए वे इतना इच्छा रखता है, तो वो जो उसके बच्चे खोए हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए कितना इच्छा रखता होगा। परमेश्वर का धड़कन है वो। How much more than He is loving and the heart is crying out for those people. We need to understand that. Right? At God's, we have to understand this kind of love. And we need to show this kind of love. We need to show this kind of love. So आइए आज जब हम यहाँ बैठे हैं, ये क्रिसमस का सीज़न भी ऐसे पार ना हो जाने दे।
बट ये क्रिसमस आइए हम किसी को तो ऐसा प्रेम को दिखाए. Let us show to someone this kind of love. Maybe there is someone hurting. Maybe there is someone in sin. Maybe there is someone who's lonely. Or maybe there is someone who needs that touch of God, who needs that hope in their life, who needs that peace of God, who needs that joy. Can we show that love of God to them? क्या हम परमेश्वर का ये प्रेम उन तक लेकर जा सकते हैं? Let us be the channel of God. Let us be those channel. आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे. Let us close our eyes and let us look to God. If it is difficult for us to understand the love of God, let us think what Christ has done for us. Let us think about that sacrifice of God for us. Hallelujah. Yes, Lord Jesus.